Now, so today we're going on to syntax analysis, right? It is a second phase of computer, right? Sorry, compiler. Okay. In first phase, we define all the programs in a token format. After defining the token and recognize the token, the next phase is uh, syntax analysis, right? The other name of syntax analysis, the main focus of the syntax analysis part is parsing, right? So it is a second phase, or its another name is parsing. So syntax analysis or you can say parsing. Okay, both are the same thing. Okay, now when we're talking about the parsing or syntax analysis, so one grammar is come to the picture that is called CFG. What is the full form of CFG? Context free grammar, right? So in other word, we can say compiler use the context free grammar, okay, or regular grammar, right? So we in previous lecture we already discussed what is the difference between regular grammar and context free grammar. In general sense, this is CFG, okay, and in inner part we're talking about the RG, regular grammar. Okay, clear? So CFG, we're talking about the CFG, context free grammar. So in other words, we can say regular grammar is also context free grammar. Okay, RG is also CFG. Okay, so context free grammar की हम जब बात करते हैं, so in context free grammar there are 4 components, right? The first component is non-terminal symbol, right? 4 components of CFG, right? Okay. 4 components में first component हमारे पास में कौन सा है? We talking about the first component is non-terminal. Okay, non-terminal we define with the capital V. Okay, next one is terminal symbols, or we can say tokens, right? So in previous lecture we already discussed what is the terminal and non-terminal symbols and tokens, right? Valid tokens and invalid tokens. Okay, next one is set of protection. We define with P. We already discussed these things in previous lectures, right? What is the grammar and how to define a grammar, right? So terminal, non-terminal, and protections. And one is most important part that is called start symbol, right? We defined with S. Okay. So these are the part. Okay. Clear? If you define any grammar, right? They are the 4 essential parts. With the help of these essential parts, you define a grammar, right? So in general way, we represent Z equal to set of V, okay, sigma symbol and P and S. So this is a representation of grammar, okay? Now, where आपके पास में अगर हम V की बात करें तो V आपके पास में क्या है? V is called नॉन टर्मिनल सिंबल. सो टर्मिनल सिंबल्स को हम लोग हमेशा स्मॉल से डिफाइन करते हैं, नॉन टर्मिनल को हम लोग कैपिटल से डिफाइन करते हैं. सो वी टॉकिंग अबाउट, वी टेक एग्जांपल, कैपिटल V मींस Q, कैपिटल A, कैपिटल K, राइट? दीज आर द टर्मिनल्स. ओके, राइट? क्लियर? यस. ओके, किसी को कोई बीच में डाउट हो बेटा तो यू कैन आस्क, राइट? नाउ सर सेकेंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे बेटा आपके पास में टर्मिनल, राइट? फर्स्ट नहीं इज सर, ये तो लिखा है सर, ये जो ये फोर के बाद समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, ऊपर 4 component of CFG, right? That is called 4 components of CFG. CFG, or we can say any grammar, right? If you represent a grammar in term of automata, in term of compiler, so grammar is a 4 tuple definitions, right? First tuple is non-terminal, second tuple is terminal, third tuple is protection, and fourth tuple is start symbol. So we can represent capital G equal to V, comma, sigma, comma, P, comma, S, right? So this is a representation of grammar, right? Now, V means non-terminal. So we, in simple sense, we says any capital letter is defined for the non-terminal point of view, and
0, 1 and small symbols, any digits are defined for the terminal symbol. So sigma is small a, 0, 1 and so on, right? Clear? What is the protections rule? Protections mean we're talking about P means we define some relations. Yani Q tends to P, right? Or A tends to K, right? These are called the protections rule. Okay. Now, uh, after that, S. So S means start symbol. So there is no problem for starting symbol point of view, right? Suppose अगर हम आपसे बोलते हैं एक palindrome grammar है, describe the palindrome grammar, right? So palindrome grammar का मतलब क्या हुआ? We talking about 1001, right? So अगर हम इसे reverse करें, so हमें क्या मिलेगा? 1001. So this particular example support for the palindrome concept, right? Okay. So how to define grammar for this particular problem, right? So we define some protection rules. On the basis of protection rule, we define the terminal and non-terminal and static symbols, right? So we take a first protection. Suppose capital Q is tends to Z, right? Okay, clear? Second protection rule is capital Q tends to N, right? Third protection rule, capital Q tends to Xylem, right? And next one is just tends to 0Q0. Okay. And next one N tends to 1Q1. Okay. We already discussed how to convert a particular piece of code examples into grammar part or which string is derived from the grammar, right? These are the two different problems. First problem, we construct a protection set with the help of giving problems. And second, if the grammar is giving, which strings are satisfied for that particular grammar, right? So these are the two different type of problems we already discussed in previous lectures, right? Where we define the how to generate the protection rule and how to satisfy a particular grammar for using protection rules, right? So we take just for the recap on these things. So suppose you want to draw a grammar for palindrome numbers, right? So in palindrome, the input set is 0, 1, right? So we're talking about sigma, so that is called 0, 1. Okay. Now, define the set of terminals, non-terminals. So non-terminal sets are capital Q, right? Z and N. These are the non-terminal, right? These are the non-terminal set. Okay. Now, we're talking about the protection rule. So how to define a protection? We're talking about the palindrome numbers. So suppose we define a protection Q tends to Z. Okay. Right? Clear? And we define a Z tends to 0Q0. So if we define protection Z tends to Q 0Q Z. So in place of Z, we put the Q 0Q0 and we want to produce the 1001 or some other palindrome number, so we can easily produce with the help of this protection rule. Now again Q tends to N, one more protection, right? And N tends to 1Q1, right? Now if you substitute the values, so you easily find out the now combinations of 101 or 111 or 010, whatever, right? Clear? Now one more protection you want to need where you want to terminate the string, so Q tends to, right? Clear? So these are the protection rules and the starting symbol S, right? So S is defined with the help of S is defined help with the Q, right? So this is a grammar representation. Okay. The four tuple definitions is, this is a four tuple definition V. So we define V, right? Sigma, we define sigma. Okay. Protection rule, these are called the protections rule. Okay. And the last is S, we define S. So this is a grammar representation. Okay. Now come to the syntax analysis. राइट, सिंटेक्स एनालाइजर आपके पास में कैसे काम करता है? सिंटेक्स एनालाइजर का मीनिंग क्या है आपके पास में? जो हमारे पास में रेगुलर एक्सप्रेशंस है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, राइट? ओके, इनका हम कोडिंग पार्ट पे रन करते हैं। पहली चीज क्या होती है, जब हम किसी भी मशीन को जनरेट करते हैं, राइट? सो मशीन हमारे पास में क्या है? पिक्चोरियल फॉर्म। सो क्या आपको लगता है कि कंपाइलर पिक्चोरियल फॉर्म को रिकॉग्नाइज करता है? गिव मी द आंसर, यस या नो? एनीवन?
अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर हमने किसी भी सी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना दिया है तो क्या वो प्रोग्राम रन हो जाएगा फ्लो चार्ट से? दैट इज नॉट पॉसिबल ना, राइट? सो वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट? एब्सोल्यूट राइट आंसर प्रखर, राइट? सो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जो ग्राफिकल पार्ट है या जो पिक्चोरियल पार्ट है उसको किसी सोर्स कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? क्लियर? सो अगर हम लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें, ओके, लेक्सिकल एनालाइजर, तो लेक्सिकल एनालाइजर आपके पास में क्या चीज एनालाइज कर रहा है, राइट? इट एनालाइज रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन किसके होंगे? हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा के होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा, ओके, क्लियर? अब एक्चुअल में जो रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इन रेगुलर एक्सप्रेशंस का हमें क्या करना पड़ेगा? सिंटैक्टिकल फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा, जो हम किसके थ्रू करते हैं? जो अभी हम लोगों ने पहला फेज पढ़ा हुआ था, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर जो हमारे पास में हमने पढ़ा हुआ था, उसमें हम लोग टोकन जनरेट करते हैं, राइट? एक पर्टिकुलर हमारे पास में कोड जनरेट करते हैं, जो कल हम लोगों ने मेथड समझा हुआ था, हाउ टू जनरेट द कोड, क्लियर? सो उसके बेसिस पे हम एक सोर्स कोड जनरेट कर लेते हैं, सोर्स कोड, ठीक? ये सोर्स कोड एक्चुअल में आपके पास में पास होता है कहाँ पे? लेक्सिकल एनालाइजर पे, राइट? अब इस लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है? आपके पास में उस पर्टिकुलर टोकन को जनरेट करना, उसके आगे वाले टोकन को जनरेट करना है, तो ये क्या करता है? आपके पास में एक टोकन स्ट्रीम्स को जनरेट करता है, दैट इज जनरेट टोकन स्ट्रीम, राइट? ओके। अब ये टोकन स्ट्रीम आपके पास में किसके पास जाती है? सिंटैक्स एनालाइजर के पास में। ये लेक्सिकल एनालाइजर है। लेक्सिकल एनालाइजर के पास काम क्या था? जो हम लोगों ने लेक्स कल पढ़ा हुआ था, राइट? अब इस लेक्स के बेसिस पे हमने क्या जनरेट किया है? टोकन स्ट्रीम्स जनरेट किए। अब ये टोकन स्ट्रीम किसको पास होती है आपके पास में? ये टोकन स्ट्रीम पास होती है सिंटैक्स एनालाइजर को, राइट? सिंटैक्स एनालाइजर, ओके। अब इस सिंटैक्स एनालाइजर पे हमारे पास में क्या है? एक दूसरा पार्ट भी है। इस सिंटैक्स एनालाइजर को एक तो टोकन स्ट्रीम आपके पास में आ गया, दूसरा हमारे पास में आता है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट? ये भी हमारे पास में इंटरेक्ट कर सकती हैं किससे? सिंटैक्स एनालाइजर से। और ये सिंटैक्स एनालाइजर आपके पास में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आपके पास में एक्चुअल में ये आपके पास में प्रोड्यूस करता है, राइट? टोकन। अगेन ये भी आपके पास में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टोकन स्ट्रीम्स, राइट? सो ये एक वे है आपके पास में पार्सर्स या आपके पास में सिंटैक्स एनालाइजर कैसे वर्क करता है, राइट? सो सिंटैक्स एनालाइजर का वर्क करने का मीनिंग क्या है आपके पास में? सिंटैक्स एनालाइजर कैसे वर्क कर रहा है? क्लियर? सबसे पहले हमारे पास में जो लेक्स वाला पार्ट है, राइट? लेक्स रिकॉग्नाइज होता है। सो लेक्स आपके पास में कन्वर्ट करता है टोकन स्ट्रीम्स, राइट? या फिर आपके पास में डायरेक्टली आपने ग्रामर को यूज किया है, सो ग्रामर पार्ट सीधे किससे इंटरेक्ट करती है? सिंटैक्स एनालाइजर से। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है? उस पर्टिकुलर सिंटैक्स को एनालाइज करता है और उसको टोकन स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करता है, राइट? अब इस जब हम ग्रामर पे डील कर रहे हैं तो ग्रामर पे डील करते समय हमारे पास में कुछ रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं, राइट? सो जिन पे हम वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहला रूल आपके पास में आता है डेरिवेशन, राइट? डेरिवेशन वर्ड सबने सुना होगा। डेरिवेशन का मीनिंग क्या है आपके पास में? Derivation, right? So derivation is a basically a sequence of production rule, right? Derivation क्या है? It is a basically, okay, a sequence of production rules. प्रोडक्शन रूल्स क्या है? वी ऑलरेडी डिस्कस प्रोडक्शन रूल्स क्या है, जिसके बेसिस पे हम ग्रामर को जस्टिफाई करते हैं, राइट? सो अ डेरिवेशन इज अ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल इन ऑर्डर टू गेट द इनपुट स्ट्रिंग, राइट? सो जब हम इनपुट स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं? प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ड्यूरिंग पार्सिंग वी टेक टू डिसीजंस फॉर सेम सेंटेंशियल फॉर्म ऑफ इनपुट, राइट? अगर हम नॉर्मल बात करें पार्सिंग की, तो पार्सिंग में वी टेक अ टू डिसीजंस, राइट? पहला डिसीजंस क्या है? डिसाइडिंग दैट नॉन टर्मिनल विच इज टू बी रिप्लेस्ड,
एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है, डिसाइडिंग द प्रोडक्शन रूल बाई विच द नॉन टर्मिनल विल बी रिप्लेस, राइट। सो डेरिवेशन हमारे पास में क्या है, टू वे से आपके पास में टू वे डिसीजंस हैं, या टू डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं, राइट। फर्स्ट डिसीजन आपके पास में क्या है, डिसाइडिंग द नॉन टर्मिनल विच वांट टू रिप्लेस, डिसाइडिंग नॉन टर्मिनल, राइट, which is to be replaced. Okay, right? And second आपके पास में क्या होता है, deciding the production rule, production rule, right? Okay, by which the non-terminal, okay, by which the non-terminal will be replaced. Okay, clear? So these are the two different decision pattern, right, in parsing. Clear? So अब आते हैं हमारे पास में इन दो डिसीजंस के बेसिस पे, अगर आप नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर रहे हो, राइट, विद प्रोडक्शन रूल, सो वी हैव अ टू ऑप्शंस, राइट। अब यहाँ पे न्यू थिंग आपको समझना है, अगर आप नॉन टर्मिनल से, राइट, नॉन टर्मिनल टू बी रिप्लेस्ड, टू बी रिप्लेस्ड, ओके, नॉन टर्मिनल टू बी रिप्लेस्ड विद प्रोडक्शन रूल, विद प्रोडक्शन रूल, ओके। सो दो ऑप्शन है आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन से आपके पास में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ओके, और दूसरा है राइट मोस्ट डेरिवेशन, ओके। सो दीज आर द टू वेज, फर्स्ट इज लेफ्ट मोस्ट एंड सेकंड इज राइट मोस्ट। किस केस में, व्हेन यू रिप्लेस नॉन टर्मिनल विद द प्रोडक्शन रूल, नॉन टर्मिनल को जब आप प्रोडक्शन से रिप्लेस कर रहे हो तो हमारे पास में दो अल्टरनेटिव्स हैं, राइट, फर्स्ट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड सेकंड इज राइट मोस्ट डेरिवेशन, ओके। अब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशंस होते क्या है, इनको हम लोग एक एग्जांपल से गो थ्रू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट। वी टेक अ एग्जांपल, okay, this is a very famous example, e plus e, right? Okay, one question is generated in this production rule, the recursion part is available or not? Anyone can give me the answer. In this production rules, right, the recursion is available, yes or no? Okay, सो अगर हम यहाँ पे आपसे बोले रिकर्सन अवेलेबल है या नहीं, सो देखो ई को आप दोबारा लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यस। सो यहाँ पे आपके पास में रिकर्सन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपके पास में रिकर्सन वर्क कर रहा है, क्लियर। तो जब आपके पास में रिकर्सन वर्क कर रहा है, सो अभी हमें इस पे आगे वर्कआउट करना है कि हमारे पास में अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो हम उसे रिमूव करना पड़ेगा, बट इन दिस टॉपिक वी डिस्कस ओनली राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सो सपोज we take a string id plus id asterisk id, right? Okay, now अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं, क्लियर, तो हम इस चीज को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, वी टेक अ एग्जांपल e टेंड्स टू e asterisk e, हम कौन सा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ले रहे हैं, सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में अगर हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो हम फर्स्ट प्रोडक्शन रूल्स कौन सा लेंगे, e टेंड्स टू e asterisk e, राइट। नाउ we want to produce plus, so we replace the e with the help of e plus e asterisk e, right, clear. Now again we replace this e with the id, okay, this e with the id and this e with the id, so the resultant part id plus id, that is equivalent to this. So that is leftmost derivation. We start from the left hand side and substitute the productions part, yeah, productions rules, and find out the resultant input string, right? If okay, now अब अगर हम आपसे बात करते हैं
राइटमोस्ट डेरिवेशंस की। सो राइटमोस्ट डेरिवेशन में अगर हमें यही स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी होती है तो हम फर्स्ट प्रोडक्शन रूल कौन सा लेते हैं, ई टेंड्स टू ई प्लस ई, राइट, एंड अगेन वी सब्स्टिट्यूट ई, राइट, विद द हेल्प ऑफ multiply, right, e times 2, and now substitute the value of id plus id and asterisk id, right, in both the way. Okay, the approach are different. In this part you take a left, in this part you take a right. So when we're talking about the derivation point of view, so we're talking about the leftmost derivation, so we take the input from the left hand side, right? If we're talking about the rightmost derivation, so we take a input from the right hand side, right? So if you generate with this string with the help of these production rule using the left derivation, so you put the left hand side values, right? This e is substitute with the e plus e. If you're talking about the right hand side, so this e is substitute with the e asterisk e. So this is a basic difference between left derivation and right derivation. Okay, clear? Now the next part is parse tree. Now parse tree, राइट? सो पार्स ट्री जनरेट करने का मीनिंग क्या है आपके पास में, हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से अगर पार्स ट्री जनरेट करते हैं, राइट? सो सपोज पार्स ट्री आपके पास में है क्या, फर्स्ट वी डिस्कस। सो पार्स ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन, राइट? पार्स ट्री क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, it is a graphical representation of derivation. Okay, it is a graphical representation of derivation, सिंपल सेंस में। सपोज अगर हम एक डेरिवेशन की बात करते हैं, ओके, a प्लस बी एस्टिक सी, जो अभी हमने ऊपर लिया हुआ था उसको आईडी की जगह हमने चेंज कर दिया है a प्लस बी एस्टिक सी, जिससे आपको अलग अलग वैल्यूज से चीजें समझ में आए। क्लियर? अब इस a प्लस बी एस्टिक सी को हमें सेटिस्फाई कराना है विद द हेल्प ऑफ गिविंग प्रोडक्शन रूल्स। ये आपके पास में प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं। इस पे हमें किस स्ट्रिंग को, अब हम आईडी प्लस आईडी की जगह क्या यूज कर रहे हैं, a प्लस बी, राइट, a प्लस बी एस्टिक सी। अब हम इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब आपको इसका, अगर हम ट्री फॉर्मेट बात करें तो सबसे पहले हमने कौन सा डेरिवेशन लिया हुआ था, हम लेफ्ट मोस्ट की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेशन हमने क्या लिया हुआ था, e टेंड्स टू e asterisk e. This is the first prediction. So convert into tree format, right? E, okay, now e, then asterisk, then e. Okay, is that part is clear, right? How to convert? First e, right, we take a first projection, e tends to e asterisk e, we convert it into tree format from left to right manner, right? So this is a root, then e, then asterisk, then e. This is the first phase. Okay, now move on the second part. After that, right, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ था, हमने प्रोडक्शंस को चेंज किया था। क्लियर? किसके थ्रू? e tends to, right, this is the first part. Okay, now the second part is e tends to e replaced with e plus e. Okay, so in term of tree point of view, right, हमने क्या यूज करना है, first part of the production represented with the parse tree is e, okay, asterisk and e. Okay, now again we substitute the e, right? So e plus e, sorry, हमें प्लस लाना था पहले, e plus e asterisk e. Okay, e plus e asterisk e. Clear? So now we explore this part. So this e is converted into e plus e. Okay, clear? This is the second step या second phase. Now थर्ड फेज में हमने क्या रिप्लेस किया हुआ था, हमें a प्लस बी प्लस सी लेके आनी थी, राइट? सो हमने पहले वाले पार्ट को, इस e को किससे रिप्लेस कर देना है, a से। सो नई स्ट्रिंग में आपके पास में, नई ट्री में क्या आप बनाओगे, प्लस, राइट, e, नाउ e, ओके, प्लस एंड e. अब ये
ई आपने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से डिजाइन करोगे, इस ई को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, बी से, और इस ई को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, सी से। सो द रिजल्टेंट आउटपुट अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी एस्टिक सी, राइट। सो आपको क्या मिल गया, ए प्लस बी एस्टिक सी, राइट। दिस इज अ पार्स ट्री। ओके, सो जब हम पार्सिंग की बात करते हैं, सो पार्स ट्री इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम इस पार्स ट्री को कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे जितने भी लीफ नोड्स हैं, ये सारे आपके पास में क्या है, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। ऑल लीफ नोड्स आर टर्मिनल नोड्स, आर इंटरमीडिएट नोड्स आर नॉन टर्मिनल नोड्स, राइट। क्लियर। सो यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर रखनी है, जितने भी लीफ नोड्स हैं दे आर टर्मिनल्स, और जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं दैट आर नॉन। ओके, क्लियर। अब आते हैं एम्बिग्यूटी की बात पे, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बिग्यूटी। ये चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, हमारे पास में जो पार्ट है वो हमारे पास में सिंटैक्टिकल एनालिसिस, राइट। सो सिंटैक्टिकल एनालिसिस जो फेज है कंपाइलर का, वो आपके पास में हमेशा अनएम्बिगुअस ग्रामर पे वर्क करता है, राइट। सो मे बी हमारे पास में जब हम ग्रामर पुट कर रहे हैं, सो वो एम्बिगुअस ग्रामर हो सकता है उसमें आपके पास में रिकर्सन हो, राइट, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो हम पहले उस ग्रामर को सिंप्लीफाई करते हैं। सो दीज आर द जनरल रूल्स, राइट। सो वी cover the one by one each and topic where the problem is occurred in CFG, right? तो सबसे पहले हमने CFG कन्वर्ट किया, CFG क्या होता है अंडरस्टैंड किया, फिर CFG का मीनिंग समझा, राइट। ग्रामर्स क्या होती है, राइट। ग्रामर्स में हमारे पास में प्रोडक्शंस का क्या रोल होता है, राइट। आफ्टर दैट हमने ये समझा कि आपके पास में जब हम प्रोडक्शंस डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसको ड्राइव करके देखते हैं। तो हमारे पास में दो डेरिवेशन मेथोलॉजीज हमें मिली, राइट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करते हैं किसी भी प्रोडक्शन रूल्स के साथ में। इसकी दो पार्ट्स हमें कैटेगराइज हुए, द फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड सेकंड पार्ट इज राइट मोस्ट डेरिवेशन। इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट, and in rightmost derivation we substitute the value from the right hand side first, right. This is a basic difference between left derivation and rightmost derivation, clear. After that we cover the past tree, right. So past tree, the basic meaning of past tree, it is a graphical representation of derivations, right. जो आपने derivations यूज किए हुए हैं उसको हम graphically represent करते हैं, क्लियर। अब आते हैं ambiguity। सपोज अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो हम ग्राफिकली जनरेट कर रहे हैं, अगर इसके दो ट्रीज मिल जाए फॉर पर्टिकुलर सेम इनपुट्स के लिए, तो वो पर्टिकुलर ग्रामर हमारे पास में क्या होगी, एम्बिगुअस ग्रामर होगी, राइट। सो अगेन इन एम्बिग्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्लियर, अगर हम सिंपल वे में बोलें कि अगर एक ग्रामर, राइट, कब एम्बिगुअस हो सकती है, जब वो एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट कर सके। सो राइट इट डाउन इन योर कॉपी, अ ग्रामर, राइट, कैपिटल G इज सेड टू बी एम्बिगुअस if it has more than one parse tree, right. Again I'm repeat, a grammar capital G is said to be ambiguous if it has more than one parse tree, right. more than one parse tree का मतलब है आपने एक लेफ्ट से डेरिवेशन स्टार्ट किया उसके पास ट्री बनाए, और एक राइट से डेरिवेशन स्टार्ट किया उसके पास ट्री बनाई, और दोनों का आंसर आपके पास में सिमिलर आ रहा है, राइट। सो ये केस आपके पास में क्या होगा, पार्स ट्री को एम्बिग्यूटी को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो वी टेक अ एग्जांपल अगेन, राइट, E tends to E plus E, okay. Now E tends to E minus E, okay, and E tends to ID, okay. अब अगर हम आपसे बोलते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव ट्री, इसका पास ट्री बनाओ, लेफ्ट एसोसिएटिव। सो लेफ्ट एसोसिएटिव बनाने के लिए आपने सबसे पहले E को ब्रेक किया, किसमें, E। हमें क्या लेके आना है आपके पास में, हमें जो प्रूफ करना है वो है ID प्लस ID माइनस ID, ओके, क्लियर। अब ID प्लस ID तो हमें सबसे पहले क्लियर है कि हमें यहाँ पे प्लस वाले प्रोडक्शंस को यूज करना है, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास में क्या आना है, माइनस आना है, तो हमने माइनस वाले प्रोडक्शंस को यूज कर लेना है, ओके। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, राइट, दिस इज ID, this is ID, and this is ID, okay, clear. So using this parse tree, right, you generate the string ID plus ID minus ID. This is a one parse tree for this particular grammar. Now generate the right associative, right. So in right associative E, right, हमें right से लेके आना है, तो first production is minus, okay, and then minus,
माइनस एंड देन ई। नाउ अगेन अब हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन है, तो दिस ई इज एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ ई प्लस ई प्रोडक्शन। Okay, now substitute the value, right? This is id, this is id, and this is id. So again, if we read this particular part, so rightmost derivations parts पे अगर हम इसे read करेंगे तो again we find it out id plus id minus id. Now we can easily say this particular grammar produce two different, okay, this particular grammar produce two different parse tree, so this grammar is called ambiguous grammar. राइट, सो एम्बिगुअस का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ। कब हम किसी भी ग्रामर को एम्बिगुअस कब कहते हैं, जब हमारे पास में किसी पर्टिकुलर ग्रामर के दो पार्स ट्री, वन से ज्यादा पार्स ट्री अगर हम जनरेट कर सके तो वो ग्रामर एम्बिगुअस होती है। अब कंपाइलर पे हम लोग एम्बिगुअस ग्रामर क्यों नहीं डील करते हैं? अगर हम एम्बिगुअस ग्रामर डील करेंगे सो रियल वर्ल्ड में अगर हम आपसे एक सिंपल सा पार्ट बोले कि हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके अगर 10 मार्क्स आते हैं, राइट, तो आप पास भी हो और आप फेल भी हो, राइट, दिस इज अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि हम 10 मार्क्स पे आपको पास समझें या 10 मार्क्स पे हम आपको फेल समझें, राइट। सो आप डिसीजन कैपेबिलिटीज नल हो जाएगी कि आप किस पर्टिकुलर पार्ट को राइट बोलो और किस पर्टिकुलर पार्ट को आप रॉन्ग बोलो। सो इस तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्रामर में। सो हम इन ग्रामर्स को फिर से रीराइट करते हैं और रीराइट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव करते हैं, राइट। सो जब हम एम्बिग्यूटी रिमूव करते हैं तो एम्बिग्यूटी रिमूव करने का मतलब है आपके पास में कि जो ग्रामर हम जनरेट करेंगे वो नॉन एम्बिगुअस ग्रामर होनी चाहिए, राइट। अब आते हैं आपके पास में नेक्स्ट पार्ट है एसोसिएटिविटी, राइट। सो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है आपके पास में, आप बोलते हो, हम लोगों ने पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टॉकिंग अबाउट लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव, राइट। सो हाउ टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर numeral is left associative or right associative. So again, in simple sense, if we're talking about addition, multiplication, subtraction and division, so generally they are the left associatives, right? अगर हम बात करते हैं a tends to b plus c, right? So हम कैसे इसको evaluate करते हैं, हम पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास में ये पार्ट हम इवेलुएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट। सो लेफ्ट एसोसिएटिविटी का मतलब होता है जब हमारे पास में हम लेफ्ट से किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर, और जब हम राइट से, अगर हम आपसे बोले एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट हमेशा क्या होगा, राइट एसोसिएटिव होगा। अगर हम एक्सपोनेंशियल में कोई भी चीज लिखते हैं, सपोज वी टेक एग्जांपल आईडी, राइट, आईडी एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, आईडी प्लस आईडी, राइट। और अगर हमने लिया हुआ आईडी, राइट, पावर आईडी, अगर हम इसको रूल्स के हिसाब से चलें तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, इसको हम एक पार्ट में करेंगे, और अगर हम इसकी बात करें तो ये राइट एसोसिएटिव है, लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव, मीनिंग क्लियर हो रहा है। और किसी भी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हम उसकी एसोसिएटिविटी को चेक कर लेते हैं, राइट। सो अगर हमारे पास में कोई भी टर्मिनल सिंबल्स हैं और उसके साथ में कोई भी ऑपरेशंस यूज किए गए हैं, तो हम उसके बेसिस पे उसकी लेफ्ट एसोसिएटिविटी और राइट एसोसिएटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, राइट। अब आते हैं प्रेसिडेंसी की बात, तो प्रेसिडेंसी हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ चुके हैं, राइट, बॉटमास रूल, राइट। प्रेसिडेंसी का मतलब है आपके पास में कि किसकी हायर प्रेसिडेंसी है। सपोज वी टेक एग्जांपल 2 + 3 * 4, ओके। सो अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें तो सबको पता है आपके पास में कि इसमें प्रेसिडेंसी किसकी ज्यादा है, टू डिफरेंट आपके पास में इसकी पास ट्री बन सकती हैं। अगर हम नॉर्मल 2 + 3 * 4 अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास में हम इसे दो तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, 2 + 3 * 4 और सॉरी 2 + 3 * 4, राइट। ये आपके पास में टू मेथड्स हैं, क्लियर। सो इट मीन्स हमें यहाँ क्लियर कट है कि हम इसकी दो पास ट्री बना सकते हैं, क्लियर, राइट। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करें तो हमारे पास में 2 + 3 के करस्पॉन्डिंग एक लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा, राइट, और एक आपके पास में क्या होगा, राइट एसोसिएटिव होगा, क्लियर। सो अब इन चीजों को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि ये चीजें क्यों ऑकर होती है हमारे पास में इस तरीके की चीजें, ड्यू टू रिकर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो अब हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन।
रिकर्सन। ठीक है, सो रिकर्सन आपके पास में दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है और एक राइट रिकर्सिव ग्रामर होती है। लेफ्ट और राइट रिकर्सिव ग्रामर का मीनिंग क्या है, जहां पे आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्शंस को आप रिपीट कर रहे हो, राइट, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल्स को, सो दे आर कॉल्ड लेफ्ट रिकर्सिव। और अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे होगा तो वो राइट रिकर्सिव होगी। क्लियर। अब आते हैं आपके पास में बेसिकली टाइप ऑफ रिकर्सन्स की अगर हम बात करें तो रिकर्सन हमारे पास में कितने टाइप के हो गए, एक तरीके से हम इसे 3 ब्रॉडर पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है आपके पास में लेफ्ट रिकर्सन, सेकंड है राइट रिकर्सन एंड थर्ड है जनरल रिकर्सन, राइट। अब इन तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं, लेफ्ट रिकर्सन, राइट रिकर्सन, ठीक है, एंड जनरल रिकर्सन का मीनिंग क्या है। सो सबसे पहले आप कॉपी पे राइट डाउन करो लेफ्ट रिकर्सन। So a production of grammar is said to be left recursion if the leftmost variable of its right hand side is same as variable of left hand side. Repeat my sentence. A production of grammar is said to have left recursion if the leftmost variable of right hand side, we're talking about the leftmost variable of right hand side, okay, is same as variable of its left hand side, right? Clear? First point is clear, second point, okay, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, left recursion if the leftmost variable of its right hand side is same as variable of left hand side LHS, okay। so पहला पॉइंट क्लियर है, अभी एग्जांपल के थ्रू भी इसको क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, अ ग्रामर कंटेनिंग अ प्रोडक्शन having left recursion is called left recursive grammar, right? So अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन जनरेट करता है what is left recursive grammar, so simple is any grammar that contain a right left recursion, that grammar is called left recursive grammar, right? Now एग्जाम्पल लेते हैं इसका लेफ्ट रिकर्सन का, S tends to SA or epsilon. This is a odd symbol. It means we're talking about the two different production, but we combine, right? It is equivalent to S tends to SA or S tends to epsilon. So we write it down in a combined way, S tends to SA or epsilon. Now we're talking about in this production, S tends to SA. Now right hand side and left hand side, right? In first point, leftmost variable of right hand side, this is right, leftmost variable, it is repeated or it is same as on a right left hand side, right? So right hand side और left hand side variable आपके पास में क्या है, repeat कर रहे हैं, so this is a recursion, right? और which type of recursion, that is a left recursion, okay, clear? अब कुछ पॉइंट्स लिखो यहाँ पे, लेफ्ट रिकर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर टॉप डाउन पार्सर्स। लेफ्ट रिकर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर टॉप डाउन पार्सर्स, राइट? पार्सिंग कितने टाइप्स की होती है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टॉप डाउन बॉटम अप पार्सर्स क्या होते हैं, बट आप हमेशा याद रखना, इफ यू फाइंड एनी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर दैट इज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक फॉर सॉल्विंग द पार्सर्स, राइट? देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट रिकर्सन्स को रिमूव करते हैं, क्लियर, राइट? अब आते हैं लेफ्ट रिकर्सन रिमूव कैसे होता है, उसको हम लोग फिर से अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं राइट मोस्ट, राइट? सो राइट रिकर्सन का मीनिंग क्या है, राइट रिकर्सन में जस्ट रिवर्स लिख लो, अ प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर इज सेड टू बी राइट रिकर्सन इफ राइट मोस्ट वेरिएबल ऑफ इट्स राइट हैंड साइड इज सेम एज वेरिएबल ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर? एंड नीचे वाले पॉइंट में आपको क्या चेंज करना है, राइट रिकर्सन है, सो दैट ग्रामर इज कॉल्ड राइट रिकर्सिव ग्रामर। इसका एग्जांपल पे आते हैं, राइट? ये थ्योरी पार्ट आप अपने आप से लिख लेना,
रिवर्स करके आपको लिखना है, राइट। अब यहाँ पे हमने एक प्रोडक्शन लिया है S टेंस टू AS और एप्सिलॉन, और वी कैन राइट इट S टेंस टू AS और S टेंस टू एप्सिलॉन। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे आपके पास में क्या है, देखो ये S आपके पास में राइट हैंड साइड, क्लियर। सो यहाँ से राइट हैंड साइड वाला पार्ट और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, राइट, अब रिपीट हो रहा है, तो ये ग्रामर आपके पास में कैसी होगी, राइट रिकर्सिव ग्रामर होगी, क्लियर, राइट। अब आते हैं हमारे पास में जनरल रिकर्सन क्या है। सो जनरल रिकर्सन की अगर हम बात करें तो जनरल रिकर्सन है सपोज S टेंस टू ASB, राइट, ना तो ये लेफ्ट में होकर हो रहा है ना या राइट में होकर हो रहा है, राइट, और एप्सिलॉन, और वी कैन राइट इट S टेंस टू ASB और S टेंस टू एप्सिलॉन, क्लियर। सो दिस इज अ जनरल, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे कि हाउ टू eliminate or remove the left recursion in graph, right? So heading डालो elimination of left recursion. Elimination of left recursion. Clear? LR, left recursion elimination. ओके, सो जनरल रूल क्या है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्सन। अगर हम लेफ्ट रिकर्सन की बात करें तो लेफ्ट रिकर्सन को हम जनरलाइज फॉर्म में ये लिखेंगे, लिख सकते हैं, राइट, दिस इज अ लेफ्ट रिकर्सन प्रोडक्शन, राइट, जहाँ पे आपके पास में क्या है, जो अल्फा और बीटा है वो आपके पास में टर्मिनल्स हैं, और ए आप और बी आपके पास में क्या है, सॉरी ए आपके पास में क्या है, नॉन टर्मिनल है, राइट। सो अगर इस तरीके का कभी भी आपको कोई प्रोडक्शन मिल रहा है तो इसको रिराइट करने का या इसको एलिमिनेशन रूल करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए टेंस टू बीटा ए डैश, right, you introduce a new non-terminal and then this non-terminal tends to alpha a dash or epsilon, right. This is a formula or rules to eliminate the left recursion, okay, right. अब ये आपके पास में क्या है, राइट एसोसिएटिव ग्रामर है, देखो राइट एसोसिएटिव है, ये क्या है, राइट एसोसिएटिव है, क्लियर। सो हम कंपाइलर या पार्सर्स की जब भी बात करते हैं तो पार्सर हमेशा किस पे काम करता है, राइट एसोसिएटिव ग्रामर पे काम करता है, राइट। अगर लेफ्ट एसोसिएटेड ग्रामर है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, राइट एसोसिएटिव ग्रामर में, क्लियर। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे आपको लेफ्ट रिकर्सन सॉल्व करना है, ओके। प्रॉब्लम लेते हैं, ए टेंस टू ए बी डी, राइट, ए और ए, राइट, बी टेंस टू बी ई और बी, ओके। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये लेफ्ट एसोसिएशन में है या नहीं है, इस चीज को हम लोग देखते हैं, राइट। सो लेफ्ट एसोसिएटिव की बात करें अगर हमारे पास में, तो लेफ्ट एसोसिएशन, सॉरी लेफ्ट रिकर्सन की बात करें तो देखो ए है, राइट, ये लेफ्ट रिकर्सन है, ये भी लेफ्ट रिकर्सन है, ये भी लेफ्ट रिकर्सन है, ये भी लेफ्ट रिकर्सन है। सो अगर हम यूजिंग फॉर्मूला इसको चेंज करना चाहे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले इस वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो ए टेंस टू ए डैश, हमने एक फॉर्मूला चेंज किया, ए टेंस टू ए डैश, और ए डैश को हमने एक प्रोडक्शन सोर्स में डिफाइन किया, बी, राइट, एंड डी, ओके, एंड ए डैश, क्लियर, बी डी एंड ए डैश। इसी तरीके से इसको चेंज किया, ए और ए डैश, राइट, और एप्सिलॉन, ठीक है, क्लियर। ये पार्ट कन्वर्ट हो गया, इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को कन्वर्ट किया, बी टेंस टू बी बी डैश, ओके, क्लियर, और आपके पास में बी डैश टेंस टू ई बी डैश और एप्सिलॉन, क्लियर। सो जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन फॉर्मूले के बेसिस पे ही आप इसे चेंज करते हो, क्लियर, ओके। अब हम आपको एक ग्रामर दे रहे हैं, ये ग्रामर आपके पास में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम आगे पार्सिंग पढ़ेंगे तो हमेशा यूज होगी, राइट, और अभी भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस पार्ट को। सो आपको इसमें से लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करना है, ई टेंस टू ई प्लस ई टेंस टू ई एस्टिक ई और ई टेंस टू ए, राइट, क्लियर। इसको अगर आपको चेंज करना है तो ये ग्रामर क्या बन के आएगी, सोल्यूशन निकालते हैं। सो ई प्लस ई
ई एस्ट्रिक ई और ई टेंस टू ई। सो सबसे पहला प्रोडक्शन हमने मान लिया है ई टेंस टू ए, राइट, और हम ई डैश मान लेते हैं, क्लियर, या आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, क्लियर, ई डैश टेंस टू, अब हमारे पास में पहला पार्ट क्या होगा, प्लस ई, ओके, प्लस ई, और आपके पास में क्या आ जाएगा, ई डैश, राइट, और दूसरा प्रोडक्शन आपके पास में क्या बनेगा, ई डैश टेंस टू, राइट, एस्ट्रिक ई, राइट, और ई डैश, तीसरा प्रोडक्शन क्या बनेगा, ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन, क्लियर। सो अब जब आप पार्सिंग की बात करोगे, तो अगर आपने ये ग्रामर पास करी है, तो पार्सर पहले क्या करेगा, यूजिंग लेक्स आपके पास में इसको कन्वर्ट करेगा राइट रिकर्सिव पार्ट, राइट, और अब इस ग्रामर को ये यूज करेगा, राइट। अब हम आपको एक पार्ट खुद से सॉल्व करने के लिए देते हैं, दैट इज योर होमवर्क, ई टेंस टू ई प्लस टी, राइट, और ई टेंस टू टी, राइट, इस ग्रामर को आपको कन्वर्ट करना है, क्लियर, राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट रूल इसमें और लिख लो आपके पास में, टी टेंस टू, थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम ले लेते हैं, टी एस्टिक एफ एंड टी टेंस टू एफ, ओके, एंड एफ टेंस टू आईडी, दैट इज अ कंप्लीट प्रॉब्लम, ओके, राइट, ये पहला प्रोडक्शन है, ये दूसरा प्रोडक्शन है, ये तीसरा प्रोडक्शन है, क्लियर, इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है, राइट, क्लियर, और दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम नोट करो, फर्स्ट प्रॉब्लम नोट हो गई, यस या नो, डू इट फास्ट, यस सर। ओके, सेकंड प्रॉब्लम नोट करो, सेकंड प्रॉब्लम है s टेंस टू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, राइट, l और a, राइट, l टेंस टू l कॉमा s और s, राइट, क्लियर, इसको आपको सॉल्व करना है, दैट इज अ सेकंड प्रॉब्लम। कॉमा आपके पास में ऑपरेटर है, सो डोंट कंफ्यूज कि एल कॉमा एस क्या है आपके पास में, दैट इज अ कॉमा, कॉमा इज ऑपरेटर, तो आप इसे यूज करोगे। एंड वन मोस्ट कॉमन एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क इन यूपीटीयू, एस टेंस टू एस जीरो एस वन एस, राइट, एस टेंस टू एस जीरो एस वन एस, और एस टेंस टू जीरो वन, दिस इज अ थर्ड प्रॉब्लम, okay, this is a third problem, clear, right, and the last problem, problem number 4, a tends to a alpha or beta, this is a fourth problem, okay, a tends to a alpha or beta, clear। so ये चार प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, राइट, क्लियर, किसी को कोई डाउट हो लेक्चर में आप पूछ सकते हो बेटा।